I think the recording is okay. Yeah. So let's say today we are going to see regarding IPO. This is what means when company want to enters in share market. मतलब company enter कैसे होता है share market में, that we will see. ठीक है. So let's start. IPO means initial public offering. We means what are the discussions for today, that will be just around this IPO. Fine. Now try to understand how that company get listed on share market, and then how we can invest in company. Okay. It's not that we can just invest in what are the company we want. No, it must be listed, then only you can just invest. Otherwise you cannot. Okay. Now try to understand. I will just take some example. Let's suppose if I have started some XYZ private limited company. Initially it's going to be the private limited. Okay. I have started that XYZ private limited company. What I said is that means if you want to just start a company, yes, fund तो थोड़ा raise करना पड़ेगा. ठीक है. So what are that my idea? I just told to my parents, I just told to my friends वगैरह, and everyone was happy कि हाँ अच्छा idea, startup है चालू कर. ठीक है. So they have just invested some money in my company. Try to understand. I have some idea. I want to start a company which is, let's suppose, XYZ private limited. Initially it's going to be private limited only. Okay, because limited people have invested in that. Fine. So I have taken the money from the, let's suppose, relative, from friends. Getting, I have just taken some money, and I have started the company. Try to understand. Whenever I taken money from this relatives and the friends, okay, have I given something means have I given something back to them, like means I will pay such interest and all? No, ticket. Try to understand that these are my close friends and all. I have just taken money from that. For the other particular people. ठीक है. I just said to them कि अगर मेरा company grow होगा तो फिर मैं आपको पैसा दे दूंगा. Otherwise I will just give a share holding in my company. Try to understand. ठीक है. If I do not have something to return, मतलब अगर मुझे interest वगैरह नहीं देना है, so what I will say to them is कि I will give you some shares. Are you getting it? Okay? For any company, let's suppose for any ABC company, if they want to have a fund, if they want to raise a fund, okay, there are two options. Either they may go for debt, okay, otherwise equity. These are the two options only. Okay, if any company want to have money, so either they may go for debt financing and equity financing. What do you mean by debt financing? किसी भी कंपनी को पैसा उठाना है, मतलब पैसा चाहिए, सर लोन. yeah, loan. Okay, so debt financing means what? If I'm taking a loan from any bank and all, if I'm just raising, try to understand, money raise करने के दो तरीके, debt and equity financing. Okay, debt means what? If I'm taking loan from the bank, so that is called a debt financing. So in that case, I will take a loan from the bank, and bank को मुझे उस पे interest return करना होगा. Means let's suppose if I have taken at some particular interest rate, तो मुझे interest return करना पड़ेगा. Try to understand. ठीक है. And if I'm raising money from the equity, इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब, इक्विटी फाइनेंसिंग, हाँ बोलो. सर अपने शेयर्स देकर वो शेयर का पैसा यूज करना. परफेक्ट. ठीक है. इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड. दोनों में मतलब फंड रेज करने के दो तरीके, किसी को भी अगर कंपनी करना है, ठीक है, दो तरीके. एक तो बैंक में जा, लोन लेके, ठीक है. अदरवाइज यू कैन जस्ट गो फॉर इक्विटी फाइनेंसिंग. इक्विटी फाइनेंसिंग मींस व्हाट? एक्चुअली शेयर मार्केट से पैसा उठाने का. ठीक है. वी वांट टू रेज मनी फ्रॉम द शेयर मार्केट. ठीक है. अब ये कैसे होता है शेयर मार्केट, मतलब कैसे होता है? अभी ये इसका स्टार्टिंग यहाँ से होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी ये छोटे से मैं भी शेयर मार्केट में जाऊंगा, कैसे लिस्ट होती है. ठीक है. लेट्स सी. नाउ दिस इज XYZ प्राइवेट लिमिटेड व्हिच आई हैव स्टार्टेड. ठीक है. इनिशियली आई हैव टेकन फंड फ्रॉम माय रिलेटिव एंड फ्रेंड्स वगैरह. समझो अभी कैसे. ठीक है. नाउ लेट्स सपोज यू आर वन ऑफ देम. मतलब लेट्स सपोज कोई तो है, जस्ट अ मिनट, लेट्स सपोज शुभ है. ठीक है. शुभ को मैंने कुछ तो आइडिया बोला मेरे कंपनी का. ठीक है. शुभ हैव इन्वेस्टेड लाइक 1 लाख रुपीस. बोला सर मैं इन्वेस्ट करता हूँ 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. सो दिस इज माय कंट्रीब्यूशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी कैसे होता है. ठीक है. अभी शुभ को फिलहाल तो आई एम नॉट गिविंग रिटर्न एनीथिंग टू दिस, मतलब शुभ. ठीक है. इट्स नॉट कि दिस इज नॉट द डेट फाइनेंसिंग. आई एम नॉट, मतलब आई एम नॉट टेकिंग लाइक हाँ तू इतना पैसा दे मैं तेरे को इंटरेस्ट देगा ना. इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है. अब मैं क्या करेगा? नाउ फॉर अ शुभ व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल जस्ट गिव सम शेयर टू हिम. आई जस्ट गिव सम शेयर टू हिम. ट्राई टू अंडरस्टैंड शेयर मतलब कैसे होता है अभी. ठीक है. अब ये क्या करते हैं? व्हेनेवर आई स्टार्ट इन, मतलब व्हेनेवर आई स्टार्ट द कंपनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो लेट्स सपोज आई एम देयर एंड विथ मी वी डू हैव, मतलब आई डू हैव सम 4 to 5 पीपल हु आर एक्चुअली रेडी टू इन्वेस्ट. मतलब मेरे कुछ तो रिलेटिव्स है, कुछ फ्रेंड्स है, और लाइकवाइज मतलब लेट्स सपोज 5 लोग और है और मैं हूं. ठीक है. सो वी आर टोटल 6 पीपल हु एक्चुअली हैव स्टार्टेड द कंपनी. मतलब वी आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी. प्रमोटर मतलब जो, मतलब इनिशियली जब कंपनी खड़ी होती है तब जो जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया, दे आर कॉल्ड एज द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी.
ठीक है, जिसकी कंपनी है उसको बोलते हैं प्रमोटर्स। गेटिंग इट? ठीक है। नाउ टू दिस प्रमोटर्स और टू दिस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूटर आई विल नॉट गिव यू द मतलब आई विल नॉट अश्योर कि हाँ मुझे इंटरेस्ट वगैरह देगा, बिकॉज वो डेट फाइनेंसिंग नहीं है। ठीक है। नाउ इनिशियली व्हाट वी हैव टू डू इज दैट आई हैव टू गिव सम शेयर्स टू देम। ठीक है, इफ मींस लेट्स सपोज कोई तो एक ही डायरेक्टर नहीं तो कोई एक क्या बोलते हैं मेन रहेगा, लेट्स सपोज वो मैं है एंड इन लोगों से मैंने पैसा लिया। ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज दैट व्हाट आई विल रिटर्न टू देम इज दैट, बिकॉज़ पैसा तो दिया है उन लोगों ने तो उनको भी कुछ तो देना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कि मतलब पैसा लिया और मैं मतलब उनको बोलेगा अभी भूल जा करके। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। सो पैसा लिया तो मतलब आई हैव टू गिव रिटर्न बैक टू देम। सो आई विल गिव अ शेयर्स। अब ये शेयर्स कैसे तो समझो। ठीक है, उसके लिए फर्स्ट व्हाट यू डू इज दैट यू हैव टू डिसाइड दैट फेस वैल्यू। Then decide a face value. ठीक है, now this is what we have seen in last lecture. हाँ, normally remind me to just revise what we have seen in last lecture because that is the important one. ठीक है, so in the last lecture we have seen the different myths regarding the share market. ठीक है, then we have seen what is the top line, what is the bottom line. I have just given you the one way of investing in a stock market, means how to choose कौन से stock में invest करना है कि नहीं करना है। ठीक है, just by looking at the top line growth and bottom line growth, that strategy I have told you. ठीक है, then from the after that we have just seen what is the face value, then dividend वगैरह थोड़ा बहुत देखा। ठीक है, so that just idea I have given to you. We will see in a detail, don't worry. ठीक है, so इनिशियली क्या होता है कि मतलब लेट्स सपोज मतलब इफ यू हैव टू गिव शेयर्स टू देम, सो व्हाट आई विल डू इज दैट वी विल डिसाइड सम फेस वैल्यू। ठीक है, मतलब एक मीटिंग करके मैं फेस वैल्यू डिसाइड करेगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज द फेस वैल्यू व्हिच आई हैव डिसाइडेड इज अ 10। अब ये फेस वैल्यू क्यों डिसाइड करते हैं? बिकॉज टू अलाउ द नंबर ऑफ शेयर्स, बिकॉज 1 लाख रुपए उससे लिया है मैंने, बट हाउ मच शेयर्स आई हैव टू अलाउ टू देम, हाउ मच शेयर्स आई हैव टू गिव इट टू द पर्टिकुलर गाय। ठीक है, सो दैट फॉर दैट पर्पस वी जस्ट डिसाइड अ फेस वैल्यू। ठीक है, सो फेस वैल्यू मींस व्हाट, एक्चुअली फेस वैल्यू का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है कि सो इनिशियली प्रमोटर्स ने एक शेयर कितने रुपीस पे बाय किया उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। समझो, प्रमोटर मतलब जो इनिशियल फाउंडर है कंपनी के, जो भी इनिशियली मतलब पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने एक शेयर कितने में बाय किया, सो वो होता है फेस वैल्यू। समझो, इनिशियल तो उन्होंने कितना शेयर का प्राइस कितना डिसाइड किया, दैट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू। ठीक है, तो अभी शुभ ने लेट्स सपोज 1 लाख रुपए मुझे मतलब दिए, देन आई विल जस्ट गिव हिम अ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, कुछ तो देगा मैं, एक ऐसा पेपर रहेगा। ठीक है, इसमें शुभ का नाम रहेगा, नेम, फिर उसके बाद फेस वैल्यू मतलब एक शेयर की प्राइस कितने एंड नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई विल जस्ट दिस इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, सो शुभ ने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया देन आई विल जस्ट गिव हिम शेयर सर्टिफिकेट एज अ रिटर्न, मतलब उसको मैं शेयर सर्टिफिकेट देगा। सो उसके ऊपर उसका नाम रहेगा, उसका मतलब कंपनी का फिलहाल तो फेस वैल्यू 10 है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ शेयर, सो एज कंपनी का फेस वैल्यू अगर मतलब 10 है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 10,000. 10,000 simply. Try to understand. Okay. So initially, Shub, I'm just giving the 10,000 shares to him at value of 10. Try to understand. At value of 10. ठीक है, at 10 रुपीज की वैल्यू पे हमने उसको दे दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो नाउ मतलब जो भी मतलब इनिशियली जो इन्वेस्टर्स एक्चुअली दे आर सम पार्ट ऑफ मतलब ओनर्स ऑफ द कंपनी, मतलब सम इन परसेंटेज जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया वो ओनर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेब्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग डिफरेंट है। ठीक है, डेब मतलब जब बैंक से मैं लोन लेता हूँ बैंक भी ओनर नहीं होती, मतलब वो बैंक का कुछ शेयर्स नहीं होता मेरे कंपनी में। ठीक है, बट इफ आई जस्ट डू द इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब मैं ऐसे उठाता हूँ, इफ आई एम गिविंग शेयर्स बैक टू देम मतलब वो भी एक अभी ओनर है कंपनी में। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो व्हेनेवर यू आर बाइंग शेयर्स ऑफ सम कंपनी, एक्चुअली वो पर्टिकुलर परसेंटेज में आप ओनर हो जाते हो कंपनी के। ठीक है, ठीक है, सो लेट्स सपोज इफ आई एम बाइंग इन्फोसिस का मैंने 1 लाख का शेयर बाय किया, इफ आई एम बाइंग अ शेयर ना मतलब मैं ओनर में से हूँ। समझ में आ रहा है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो अभी क्या होता है मतलब शुभ ने 1 लाख दिया, फेस वैल्यू मैंने 10 डिसाइड किया, तो नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच आई हैव जस्ट गिवन टू हिज मतलब 10,000 का मतलब ये सर्टिफिकेट बनाएगा मैं एंड उसको देगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट मतलब नाउ ही इज गॉट मतलब शेयर्स इन माय कंपनी। ठीक है, लाइक वाइज जितने भी लोग हैं सबको मैं देगा। ठीक है, ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या, एट इनिशियली लोगों ने कितने मनी मतलब एक शेयर का प्राइस कितना रखा था एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आई विल जस्ट इशू द शेयर्स टू ऑल जिन्होंने भी मतलब पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, एंड आई विल जस्ट गिव देम अ शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, नाउ कीप इन माइंड दैट इनिशियली द शेयर सर्टिफिकेट विल बी इन अ फिजिकल फॉर्मेट। दिस विल बी इन फिजिकल फॉर्मेट। ठीक है, जब तक कंपनी लिस्ट नहीं होती तब तक वो फिजिकल फॉर्मेट में रहेगा, तब तक वो डीमैट नहीं होगा। डीमैट नाम सुना होगा, वो डीमैट डीमटेरियलाइजेशन जो हुआ डीमटेरियलाइज। था. अब ये मटेरियलाइज में फिजिकल फॉर्म में दिया है मैंने उसको। ठीक है, बिकॉज मेरा कंपनी अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, सो डीमैट कब होता है, जब वो मतलब लिस्टिंग कंपनी होता है तब मुझे शेयर्स डीमैट में देना पड़ता है, डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक शेयर बोल सकते हैं, ई शेयर्स बोल सकते हैं। ठीक है, बट इनिशियली आई जस्ट गिव देम अ सर्टिफिकेट, मतलब एक फिजिकल एक ऐसा कागज का टुकड़ा रहेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट डीमैट एक्चुअली। गेटिंग इट? ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, सो लाइकवाइज आई जस्ट इशू टू ऑल। नाउ लेटर ऑन लेट्स सपोज अभी मुझे मतलब थोड़ा कंपनी स्टार्ट हुआ,
कीप इन माइंड कंपनी एक्सपांड करने के लिए पैसा तो लगता है और एक इंडिविजुअल के पास इतना पैसा नहीं रहता, तो फंड रेज करना ही पड़ता है। ठीक है, सो इनिशियली ऐसा मैंने 6 लोगों ने स्टार्ट किया था कंपनी, उनको मैंने ऐसे मुझे कुछ तो दे दिया, शेयर सर्टिफिकेट वगैरह दे दिया। ठीक है, बाद में आई थॉट कि नहीं यार अभी और चाहिए मुझे, मतलब पैसा बहुत चाहिए, मतलब इतने से नहीं होगा। आई वांट टू एक्सपांड द कंपनी, मतलब आई वांट टू ओपन माय न्यू ब्रांच और आई वांट टू डेवलप द टेक्नोलॉजी, आई वांट टू जस्ट बाय सम न्यू मशीनरीज और जो भी है, एक्सपांशन के लिए पैसा चाहिए और। ठीक है, देन व्हाट आई विल डू इज दैट नाउ लेट्स सपोज नाउ द सेकंड स्टेज, पहला स्टेज मैंने जस्ट चालू किया कंपनी एंड आई एम फीलिंग कि यार कंपनी इज डूइंग गुड, अभी एक्सपांड करना चाहिए। हाँ, कंपनी गुड नहीं कर रहा है तो फिर मैं एक्सपांड ही नहीं करेगा, उसको बंद कर देगा, तो जिन्होंने भी पैसा डाला था वो डूब गया। ठीक है, हाँ बट इफ इट इज डूइंग गुड देन व्हाट आई हैव टू एक्सपांड इट, मतलब आई विल थिंक ऑफ एक्सपांशन। ठीक है, तो एक्सपांशन के बाद अभी मैं क्या करेगा, नाउ आई विल ट्राई टू अप्रोच सम एचएनआई और सम इन्वेस्टर। ठीक है, एचएनआई मतलब हाई नेट इन्वेस्टर, मतलब जो ज्यादा पैसा डाल सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ज्यादा पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, आई विल जस्ट ट्राई टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर पीपल। ठीक है, बिकॉज मेरे को पैसा तो चाहिए, अभी रिलेटिव्स वगैरह जो भी मेरे क्लोज थे उनसे तो मांग लिया। नाउ आई हैव टू सर्च फॉर समथिंग समवन एल्स, मतलब जो बिजनेसमैन है जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई जस्ट प्रेजेंट माय आइडिया, मेरा कंपनी करता क्या है। ठीक है, इफ यू लाइक, इफ यू फील कि मतलब आई हैव दैट पोटेंशियल, आई कैन जस्ट ग्रो, देन प्लीज इन्वेस्ट इन माय कंपनी, सो आई विल ट्राई टू कन्विंस देम। ठीक है, सो आई विल जस्ट गो टू द एचएनआईस, हाई नेट इन्वेस्टर। ठीक है, सो नाउ लेट्स सपोज मैंने एचएनआई से पैसा ले लिया, इससे मैंने लेट्स सपोज 100 एचएनआई से मैंने पैसा ले लिया। ठीक है, इनिशियली 6 जन का था, अभी लेट्स सपोज 106 लोगों का हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंपनी में एक्सपांड कर रहा हूं। ठीक है, इन लोगों से मैंने पैसा उठाया, वंस अगेन टू देम आई विल जस्ट गिव अ शेयर सर्टिफिकेट, आई विल जस्ट गिव देम अ शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, नाउ नाउ द थिंग इज दैट नाउ इनिशियली द फेस वैल्यू वाज 10 जब तूने स्टार्ट किया था, राइट टू अंडरस्टैंड, तूने स्टार्ट किया था। ठीक है, अभी नाउ यू कैन डिसाइड तेरा एक शेयर कितने का रहेगा, मतलब दैट इज डिपेंडिंग ऑन यू। मतलब इफ यू वांट कि मतलब उन्होंने ज्यादा पैसा डालना चाहिए, तो मतलब यू विल जस्ट गिव हिम, गिव देम पर्टिकुलर एचएनआई एट रुपीज 10 ओनली। ठीक है, मतलब उनको बोलेगा देख मैंने कंपनी स्टार्ट किया था उसी प्राइस में तेरे को दे रहा है, मैं बढ़ा नहीं रहे, इफ यू वांट टू हैव दैट मोर एंड मोर इन्वेस्टर। ठीक है, नाउ इफ यू फील कि तेरे कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ की है, मतलब जिसने जब से तूने स्टार्ट किया, ठीक है, देन अभी से मतलब इनिशियल मेरा 10 था, अभी मैं तेरे को 20 रुपीज में देगा। ठीक है, अब ये जो 20 रुपीज मतलब न्यू बाइंग लेट्स सपोज जो भी तू डाल रहा है, मतलब न्यू प्राइस पे जो दे रहा है। ठीक है, नाउ दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज अ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो स्टार्टिंग में जो किया था ना डिस्ट्रीब्यूशन शेयर का, ठीक है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, जो प्राइस पे किया था। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज जो नया एचएनआई आ रहा है, मतलब आईपीएल की कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, सो आई डिसाइडेड वंस अगेन टू देम आल्सो आई एम गोइंग टू गिव अ शेयर्स ओनली, आई एम नॉट डूइंग दैट डेप फाइनेंसिंग, शेयर से ही कर रहा हूं मैं। ठीक है, नाउ आई विल जस्ट गिव देम, लेट्स सपोज आई डिसाइडेड कि मतलब उनको, मतलब जो भी मेरे प्रोमोटर्स थे 6 लोग, उन्होंने डिसाइड किया कि अभी जो नया एचएनआई आएंगे उनको मैं 20 रुपीज में देगा। ठीक है, तो वंस अगेन लेट्स सपोज अभी जो एचएनआई से लेट्स सपोज दे वंस अगेन इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज, 1 लाख, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी फॉर द कैलकुलेशन आई एम टेकिंग 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख रुपीज दिया, देन नाउ लेट्स सपोज नाउ एट व्हाट आई एम गिविंग टू देम, मतलब शेयर्स का जो भी प्राइस है सपोज 20, तो इनको जो भी नंबर ऑफ शेयर्स जाएंगे ना वो 50,000 सॉरी 5,000 जाएंगे, समझो। 5,000 शेयर्स ले लिए उन्होंने एट रुपीज ऑफ 20। ठीक है, अगर उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, कीप इन माइंड वंस अगेन ये कितने में देना है मेरे ऊपर है। ठीक है, इफ आई वांट कि मतलब बहुत सारे एचएनआर है, तो फिर मतलब टू लेट्स सपोज उनको जस्ट दिखाने के लिए मैं बोल सकता हूं देख पहला जो फेस प्राइस है उसके प्राइस पे ही दे रहा हूं, तो फिर मतलब ज्यादा लोग आएंगे। ठीक है, हाँ इफ आई जस्ट इंक्रीज द प्राइस तो फिर कम भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजी, मतलब आपको कितना पैसा रेज करना है। ठीक है, सो नाउ मतलब फेस वैल्यू मतलब क्या, जो इनिशियली डिसाइड होता है ना वही होता है, उसके बाद नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, सो लाइकवाइज लेट्स सपोज मैंने अभी फंड रेज किया, मैंने कंपनी को ग्रो किया। ठीक है, ग्रो किया उसके बाद आई फील कि नहीं अभी और ग्रो करना चाहिए, कंपनी बहुत मस्त कर रही है। ठीक है, इसको मुझे ऐसा मतलब पूरा पैन लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना, पूरा इंडिया में उसको अभी उसको फैलाना है। आई गेटिंग इट। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी ये थर्ड स्टेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें मतलब इंटरमीडिएट भी स्टेज आ सकता है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी थर्ड स्टेज क्या होगा पता है, कि नाउ अभी मतलब जितने भी एचएनआई वगैरह थे उनको मैंने, ठीक है, आई हैव जस्ट गैदर्ड सम मनी फ्रॉम दैट, आई हैव जस्ट रेज सम मनी फ्रॉम दैट। ठीक है, बट अभी मुझे और चाहिए, अभी और चाहिए, तो क्या होता, मतलब हर एक को इंडिविजुअल को, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू अप्रोच दैट ईच एंड एवरी एचएनआई एंड पैसा दे, बट मुझे पता है उससे लिमिटेड होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इनिशियली जब मैंने स्टार्टिंग किया था ट्राई टू अंडरस्टैंड, तब मेरा कंपनी जस्ट लाइक XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जब मतलब व्हेन आई हैव टेकन द मनी फ्रॉम द एचएनआईज एंड ऑल, लेट्स सपोज 100 200 500 लोगों से मैंने पैसा ले लिया। ठीक है, दैट टाइम माय कंपनी विल बिकम लेट्स सपोज लाइक ABC लिमिटेड, नाउ इट वोंट बी द प्राइवेट लिमिटेड, इट्स जस्ट गोइंग टू बी लिमिटेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या किधर गया है, या सो इट्स गोइंग टू बी नाउ हियर एट दिस स्टेज इज गोइंग टू बी ABC लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहा, अब लिमिटेड हो गया, थोड़ा कंपनी बड़ा हो गया।
ठीक है, अभी थर्ड में क्या करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ आई विल जस्ट गो टू द शेयर मार्केट। व्हाई आई विल गो टू द शेयर मार्केट? बिकॉज यहाँ पे सब लोग हैं। ठीक है, हियर इन दिस फर्स्ट एंड टू स्टेज व्हाट आई हैव डन इज आई एम जस्ट गोइंग टू दी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंड उधर से मैं पैसा उठा रहा हूँ। अब मैं थक गया, मतलब ऐसा करेंगे तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, नाउ जस्ट गो टू द शेयर मार्केट, मतलब व्हाट, एनएससी एंड बीएससी के पास। उनके बोलेगा मतलब मुझे अभी फंड रेज करना है, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड मींस आई वांट इन्वेस्टर। अभी एनएससी एंड बीएससी का बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, मतलब क्या, जिनका भी शेयर मार्केट में अकाउंट है, ये लोग इधर है। ठीक है, मतलब आई नीड नॉट टू गो टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कि बाबा पैसा दे इन्वेस्ट कर करके। ठीक है, आई जस्ट गो टू देम। ठीक है, इनको बोलेगा मेरे को कंपनी लिस्ट करना है सो दैट पीपल कैन इन्वेस्ट इन मी। ठीक है, ठीक है, एंड नाउ व्हेनेवर यू जस्ट list your company on a share market, now the people will start investing in your company. People will start investing, मतलब or from all over India or from anywhere actually, those who are having demat account of India share market. ठीक है, now they will start what you say that contributing in your company. ठीक है, now whenever you want to list your company on this share market, उसके लिए मुझे आईपीओ लाना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। राइट टू अंडरस्टैंड, उसके लिए मुझे आईपीओ लाना पड़ता है। ठीक है, अभी आईपीओ कैसे लाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी जस्ट गिव थोड़ा आइडिया, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर जितना रिक्वायर्ड है उतना बताऊंगा। अभी आईपीओ में तब करना क्या रहता है समझो। ठीक है, आईपीओ मतलब क्या होता है, इसका मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब अभी मैं पब्लिक को दे रहा, अभी जब तू पब्लिक को देगा ना, ये पब्लिक कंपनी हो जाएगी। ठीक है, नाउ इट वोंट बी एनी प्राइवेट लिमिटेड वगैरह, अभी ये पब्लिक कंपनी हो जाएगी व्हेनेवर इट विल गेट लिस्टेड ऑन अ शेयर मार्केट, बिकॉज़ अभी इसमें पब्लिक का पैसा है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, अभी आईपीओ होता कैसे, लेट्स सी, आई विल गिव यू द आइडिया, जस्ट अ मिनट। या, ठीक है, can I write that? नाउ इन आईपीओ, अभी आईपीओ मतलब कैसे होता है, लेट्स सपोज मेरा कंपनी का वर्थ रुपीज है 1000 करोड़ का मेरा कंपनी है। ठीक है, 1000 करोड़ का कंपनी है मेरा। ठीक है, आईपीओ मतलब मुझे पूरा का पूरा कंपनी बेचना नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू सेल माय, तो फिर मजा नहीं है फिर, मतलब कंपनी पूरा बेच के पब्लिक को। ठीक है, अभी आईपीओ कैसे रहता है, रूल्स रहते हैं सबको। ठीक है, कि मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ स्टेक तेरे पास रहना ही चाहिए, तो मतलब पूरा का पूरा कंपनी बेच नहीं सकता कभी, एटलीस्ट 20% होना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, सो दैट मस्ट बी विद प्रमोटर्स, एटलीस्ट 20%। ठीक है, एंड अप टू 80% यू कैन जस्ट ऑफर टू द पब्लिक, इसके ऊपर नहीं कर सकते। गेटिंग इट? ठीक है, मतलब लेट्स सपोज मेरा 1000 करोड़ का कंपनी है, सो आई कैन ऑफर 800 करोड़ का शेयर्स टू दी पीपल, इसके ऊपर मैं नहीं कर सकता, समझो अभी। ठीक है, अब ये करते कैसे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसमें कैसे है, आईपीओ के लिए करते कैसे, जस्ट लाइक दिस वन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट डिसाइड इशू साइज। इश्यू साइज मींस व्हाट, तेरा कंपनी का जो भी वैल्यूएशन है, जैसे वो मेरा कंपनी 1000 करोड़ का। ठीक है, अब ये वैल्यूएशंस वगैरह कौन डिसाइड करेगा, मतलब आई हैव टू जस्ट अप्रोच टू सम बैंक्स एंड ऑल। अभी उसके इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये मर्चेंट्स को मुझे अप्रोच करना पड़ता है। ठीक है, सो नाउ दे विल जस्ट डिसाइड योर वैल्यू, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। नाउ दिस इज द कंपनी का वैल्यूएशन। ठीक है, अब आउट ऑफ दैट up to 80% you can just offer to the public, मतलब you can just put it in market। ठीक है, up to 80% पुट कर सकते, उसके ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरा 1000 करोड़ का कंपनी है, लेट्स सपोज मुझे 800 करोड़ नहीं 200 करोड़ ही करना है, बिकॉज मुझे पता है कि मतलब मेरा कंपनी ग्रो करेगा तो ज्यादा फायदा मेरा होना चाहिए ना, तो मतलब मेरे शेयर ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट 20% में लोगों को ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, एंड 80% मेरे पास रख रहे हैं, समझो, मतलब मेरे पास मतलब प्रमोटर के पास, जिन्होंने भी इनिशियली इन्वेस्ट किया था। ठीक है, सो 20% आई वांट टू जस्ट अलोकेट टू द पीपल। ठीक है, मतलब मुझे 200 करोड़ का आईपीओ लाना है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इशू साइज। दिस इज कॉल्ड एज इशू साइज, मींस कंपनी के 100% शेयर में से कितना परसेंट शेयर पब्लिक को जा रहा है, पब्लिक को देने वाला, दैट इज कॉल्ड द इशू साइज। ठीक है, सो अराउंड 200 करोड़ का मुझे इशू साइज लाया मैंने आईपीओ का। ठीक है, 20% का कंपनी में पब्लिक को देना चाहता हूं, मतलब आई वांट पब्लिक टू इन्वेस्ट। ठीक है, ठीक है, अब इशू साइज, दिस इज कॉल्ड द इशू साइज। ठीक है, उसके बाद वी हैव टू डिसाइड इशू प्राइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड आईपीओ में क्या होता है, इशू प्राइस। ठीक है, इनिशियली जब मतलब शेयर होल्डर्स से, जो भी प्रोमोटर्स थे, ठीक है, दे हैव बॉट द शेयर्स एट 10 रुपीज, मतलब जो मैंने इन्वेस्ट वगैरह किया था, मैंने 10 रुपीज के हिसाब से शेयर्स बांटे थे। ठीक है, अब मुझे जब लिस्ट करना है कंपनी, तो मैं अभी 10 रुपीज से नहीं करेगा, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था एट दैट टाइम इट वाज रिस्की, मतलब कंपनी ग्रो करेगी नहीं करेगी मेरे को पता नहीं था। ठीक है, बट ओवर द इयर्स, जैसे वो जितना भी साल हुआ, 5 10 जितना भी साल हुआ, ठीक है, अब मैंने कंपनी को ग्रो किया है। अब वो शेयर्स में 10 रुपीज में नहीं देगा, अभी मैंने बहुत मेहनत की है उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, कंपनी इज नाउ समथिंग एस्टेब्लिश वन। ठीक है, सो नाउ आई विल नॉट गिव द शेयर एट 10 रुपीज। ठीक है, आई विल सेल इट एट 100 रुपीज, समझो।
ठीक है. दैट एक्चुअली नाउ हु विल डिसाइड दिस इश्यू प्राइस एंड ऑल, दैट डिपेंड्स ऑन दैट बैंक एंड ऑल. मतलब बैंक्स वगैरह बैंक के साथ बैठ के डिसाइड करना पड़ता है. जो आईपीओ मेरे पब्लिश करने वाले वो बैंक के साथ वगैरह बैठ के डिसाइड करना पड़ता है कि इश्यू प्राइस कितना होना चाहिए. बट ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी मच हायर देन दैट फेस वैल्यू. अब फेस वैल्यू पे नहीं बेचेगा मैं. ठीक है. जब डीमार्ट स्टार्ट हुआ था, समझो डीमार्ट, आई विल जस्ट गिव द एग्जांपल ऑफ डीमार्ट. ठीक है. डीमार्ट आई थिंक जब राधा किशन दमानी और वो लोगों ने जब इन्वेस्ट किया था, आई थिंक उसका फेस वैल्यू 10 था. फेस वैल्यू 10 था. ठीक है. बट whenever they started with, मतलब when they thought of offering the IPO, ठीक है, तब इश्यू प्राइस वाज अराउंड 299. ठीक है. इनिशियली जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था 10 रुपीज के हिसाब से किया था. ठीक है. पर जब आईपीओ आना था, इट वाज एक्चुअली इन मार्च 2017. ये डीमार्ट मेरा बहुत फेवरेट है. ठीक है. मार्च 2017 में जब उन्होंने आईपीओ लाया था. ठीक है. सो दैट टाइम दैट इश्यू प्राइस वाज 299. नाउ दैट विल बी डिसाइडेड बाय जो भी बैंक्स वगैरह है, मतलब जो दोस हु आर एक्चुअली पब्लिसाइजिंग दिस आईपीओ एंड ऑल. ठीक है. सो तो वो लोग डिसाइड करते हैं सब लोग मिलके. ठीक है. तो इश्यू प्राइस 299 था. इश्यू प्राइस, ठीक है, मतलब कितने प्राइस पे में बेचेगा. ठीक है. ठीक है. सो नाउ दिस फॉर द इश्यू प्राइस, मतलब एक शेयर का प्राइस कितना होगा. नाउ आईपीओ में होता क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड आईपीओ में होता क्या. ठीक है. वी कैन नॉट बाय जस्ट ओनली सिंगल शेयर, बिकॉज़ आईपीओ जब होता है ना उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, बहुत सारे न्यू टर्म्स आएंगे, डोंट वरी, आहिस्ता आहिस्ता यू विल गेट फैमिलाइज्ड विद इट. ठीक है. आईपीओ इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी मार्केट, मतलब प्राइमरी मार्केट, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी. ठीक है. एंड अभी जो नॉर्मली हम शेयर मार्केट में डील करते हैं उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं. IPO means what? This is the first time you are taking shares from company itself. Whenever I'm just buying shares from the company ना, उसको बोलते हैं IPO और उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट. मैं कंपनी से ले रहा हूँ. ठीक है. अब कंपनी क्या करती है कि ऐसे वो चिंदगी नहीं करती है एक दो शेयर्स वगैरह बेच के. नो, वो एक लॉट डिसाइड करते हैं, शेयर का लॉट डिसाइड करते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ शेयर्स और लॉट. ठीक है. मतलब मिनिमम इतना तो लेना है तुझे. ऐसा नहीं कि हर एक से लेके बता तू 100 रुपए दे 100 रुपए दे ना. सब मिनिमम लॉट दी विल डिसाइड. ठीक है. लॉट का साइज रहता है. अब लॉट का साइज सपोज इफ मेरा 100 का एक इश्यू प्राइस है. ठीक है. तो लॉट साइज इज सपोज 150 शेयर्स. तो मिनिमम दोज हु वांट टू इन्वेस्ट यू हैव टू टेक मिनिमम 150 शेयर्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आईपीओ ला रहा हूँ मार्केट में, मुझे लिस्ट करना है, क्या क्या करना पड़ता है. ठीक है. पहला मुझे इश्यू साइज डिक्लेयर करना पड़ता है. मैं कितना कंपनी जो भी मेरा कैपिटल मतलब जो भी मेरा कंपनी का वैल्यूएशन है, आउट ऑफ दैट कितना मैं पब्लिक को ऑफर करना चाहता हूँ. ठीक है. आफ्टर दैट हाउ टू डिसाइड इश्यू प्राइस, मतलब एक शेयर का प्राइस क्या होगा. ठीक है. आफ्टर दैट आई विल डिसाइड लॉट साइज आल्सो, मतलब एक लॉट कितने का होगा. ठीक है. मींस व्हाट, इफ माय इश्यू प्राइस is 100 rupees and my lot is 150 rupees, then minimum investment those who want to do minimum investment आपको 15,000 का करना ही है. इसके नीचे नहीं चलेगा. हाँ, इसके ऊपर आप कितना भी, इसके ऊपर मींस व्हाट, वंस अगेन इन मल्टीपल ऑफ लॉट. ठीक है. लेट्स सपोज समवन वांट टू इन्वेस्ट के 20,000 ना, ये भी नहीं पॉसिबल. यू हैव टू जस्ट व्हाट यू कैन से इन्वेस्ट इन मल्टीपल ऑफ लॉट. Are you getting it? ठीक है. अगर एक लॉट मेरा 15,000 का है, so if you want to just buy another one, तो मुझे 30,000 करना पड़ेगा. 20,000 25,000 नहीं, 30,000 का. ठीक है. मींस यू आर बाइंग अ लॉट. ठीक है. सो इनिशियल मतलब whenever I say the IPO, you have to buy the lots. ठीक है. लॉट देखने का कितने के, एंड एक शेयर का प्राइस कितना है, तो ये लॉट का प्राइस हो गया एंड यू हैव टू बाय लॉट. ठीक है. एक जो भी लॉट रहेगा उसको मुझे बाय करना है. ठीक है. मींस आई कैन बाय 15,000 30,000 45,000 ऐसा बाय कर सकता है. ठीक है. बट इफ आई वांट टू बाय 20,000 तो नहीं होगा. आर यू गेटिंग इट. ठीक है. सो लॉट साइज रहता है. ठीक है. ठीक है. अब ये लॉट में मतलब जब अलॉट करते हैं इसमें भी अभी बहुत सारा फंड है. या अभी जस्ट टेल यू थोड़ा सा. अब ये इश्यू प्राइस में ना देयर आर टू टाइप्स एक्चुअली. इश्यू प्राइस डिसाइड करते हो. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज, आई फॉरगॉट दैट नेम, क्या बोलते हैं इसको. या फिक्स प्राइस इश्यू. दो टाइप के इश्यू रहते हैं. फिक्स प्राइस इश्यू. ठीक है. एंड अनदर इज कॉल्ड एज अ बुक बिल्डिंग इश्यू. ठीक है. whenever I'm मींस इश्यू प्राइस जो भी रहता है, अब इसमें दो टाइप रहते हैं इश्यू प्राइस में, फिक्स प्राइस इश्यू एंड बुक बिल्डिंग इश्यू. फिक्स प्राइस मतलब प्राइस फिक्स रहेगा. ठीक है. बट इफ आई टॉक रिगार्डिंग बुक बिल्डिंग इश्यू, एंड नॉर्मली कंपनी प्रीफर दिस वन, ये नहीं प्रीफर करते कोई अभी फिलहाल तो. ठीक है. दे जस्ट प्रीफर दिस वन. ठीक है. नाउ व्हेनेवर से द बुक बिल्डिंग इश्यू ना, नाउ इन दिस एक्चुअली आई हैव टू गिव अ रेंज मतलब एक शेयर का प्राइस कितना होगा, समझोगे. ठीक है. नाउ इफ आई जस्ट डिसाइड इश्यू प्राइस टू बी दिस वन ओनली 100 रुपीस ओनली. ठीक है. तो इसको बोलते हैं फिक्स प्राइस इश्यू. ठीक है. एंड देयर इज अनदर वे, अनदर प्राइस इज जस्ट लाइक दिस कॉल्ड एज अ बुक बिल्डिंग इशू. अब इसमें क्या होता है, यू हैव टू गिव अ रेंज, यू हैव टू गिव मतलब एक शेयर का प्राइस कितना हो सकता है. ठीक है. सो लेट्स सपोज आई विल जस्ट गिव द रेंज लाइक 100 to 120 एंड इट कैन नॉट बी मोर देन मतलब जो भी तेरा लोअर लिमिट है ना अपर लिमिट है. ठीक है. अब ये लोअर लिमिट उसको फाइनेंशियल टर्म में बोलते हैं, इसको कुछ तो बोलते हैं फ्लोर प्राइस, एंड जो अपर लिमिट है उसको बोलते हैं कैप प्राइस.
ठीक है। एंड अभी ये जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है इसके बीच में यू कैन नॉट मेक डिफरेंस मोर देन 20%, इसके ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, इफ माई फ्लोर प्राइस 100 रुपीज, तेरा कैप प्राइस 120 के ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, हाँ इसके नीचे लाना है 110 तक चलेगा, बट इसके ऊपर नहीं। गेटिंग इट? ठीक है, सो इशू मतलब जो भी इशू प्राइस है नाउ दिस विल बी इन रेंज ऑफ 100 टू 120, ऐसा भी हो सकता है। एक तो फिक्स हो सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट तरीका इज दैट इट कैन बी इन दिस पर्टिकुलर रेंज। ठीक है, नाउ पीपल हैव टू बाय वंस अगेन इन लॉट। ठीक है, अभी लॉट का साइज क्या होगा, ये अगर लेट्स सपोज मेरा लॉट का साइज 150, तो लॉट का प्राइस क्या होगा, इट विल बी इधर इन 15,000 और 120 टू 150 जितना भी होगा अमाउंट। ठीक है, इधर इतना अदरवाइज इतना तुझे डाल के चलना है प्राइस मिनिमम, समझो। ठीक है, जैसे प्राइस रेंज ये प्राइस में डालना है। ठीक है, आपको मतलब सम लोग रहेंगे, मैं बोलेगा हाँ मुझे 100 पे लेना है, समवन विल बी देयर वी विल से कि हाँ मुझे 105 पे लेना है, समवन विल से मुझे 110 पे लेना है। ठीक है, सो लाइकवाइज दे कैन जस्ट बिड, इसको बोलते हैं बिडिंग, मतलब वो बिडिंग चालू होते हैं, लोग बिडिंग करना चालू करते हैं। ठीक है, ये प्राइस रेंज दे दिया, अब इसमें से तो जब कौन सा भी प्राइस उठा उसके ऊपर बिडिंग लगा, मतलब मैंने तुझे 150 शेयर तो खरीद नहीं है, अब कौन से प्राइस पे यू डिसाइड 100 टू 120 के बीच में कितने प्राइस पे ले रहे हैं। ठीक है, वैसे मुझे बिडिंग करना पड़ता है, मतलब लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे थ्रू देयर डीमैट अकाउंट और क्या बोलते हैं ब्रोकर्स के थ्रू। ठीक है, अदरवाइज यू कैन नाउअडेज यू कैन डू इट फ्रॉम यूजिंग दैट यूपीआई आल्सो, पेटीएम वगैरह से भी करते हैं, आईपीओ अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी वो अलाउ किया है। ठीक है, ठीक है, सो नाउ दिस इज कॉल्ड, मतलब दिस इज आई बी जस्ट ऑफरिंग आईपीओ। ठीक है, अभी आईपीओ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लोगों ने अभी बिडिंग किया, पैसा मतलब इन्वेस्ट करना चालू किया। ठीक है, अभी आईपीओ अलॉटमेंट कैसे रहता है, अभी ये जस्ट में आईपीओ ओपन हुआ। ठीक है, नाउ इट विल बी ओपन फॉर 3 to 5 days, 3 to 5 days के टाइम रहता है जब तक लोगों को मतलब पैसा डालने का अलाउ रहता है। ठीक है, मतलब इन्वेस्ट करने का। ठीक है, कीप इन माइंड आईपीओ में सिर्फ बाइंग होता है, सेल नहीं कर सकते अपन, आईपीओ में सिर्फ बाइंग होता है, वी कैन नॉट सेल बिकॉज वी आर बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी, वी आर बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, एंड दिस आईपीओ विल बी ओपन फॉर 3 to 5 days। ठीक है, सो मतलब अभी रिसेंटली बहुत सारे आईपीओ थे, बहुत बहुत सारे आए थे। अभी इफ यू हर्ड कि जोमेटो का आया था। ठीक है, तत्व चिंतन का आया था, देन क्या रोलेक्स रिंग का आया था, बहुत 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 लोगों का आया था आईपीओ फिलहाल तो। ठीक है, सो आईपीओ क्या रहता है, मतलब उसका स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट रहता है, मतलब कब तक खुला है। ठीक है, तब तक अपने को इन्वेस्ट कर। ठीक है, एक बार इन्वेस्ट हो गया, नाउ दे विल सी कि मतलब कितना सब्सक्राइब हुआ है आईपीओ, समझो अभी। ठीक है, अभी मतलब जितना भी मतलब सब्सक्राइब कितना हुआ है, मतलब ले सपोज मेरा इशू साइज कितना था, या 200 करोड़, मतलब 200 का मैंने आईपीओ खोला था, समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड 200 करोड़। ठीक है, एंड अगर जो भी एप्लीकेशन है जो भी मतलब लोगों ने इन्वेस्ट किए, मतलब इन्वेस्ट मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी तक शेयर्स अलॉट नहीं हुआ है, अलॉटमेंट डिफरेंट है, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी जस्ट आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, मैंने पब्लिक को ऑफर किया, पब्लिक का रिस्पॉन्स देख रहा हूँ मैं कितना आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज मेरा इशू साइज था 200 करोड़। ठीक है, एंड लेट्स सपोज लेट्स सपोज 190 करोड़ का ही मतलब लेट्स सपोज सब्सक्रिप्शन आ गया, लोगों ने मतलब 190 करोड़ का ही किया है। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जितने भी लोगों ने जितने भी शेयर्स के लिए डिमांड किया सबको मिल जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बट नॉर्मली क्या होता है कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, अभी जोमेटो का देखा रहेगा तो ओवर सब्सक्राइब हुआ था, तत्व चिंतन भी ओवर सब्सक्राइब हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता मतलब जस्ट लाइक ओवर सब्सक्राइब, मतलब क्या कि लेट्स सपोज मेरा 200 करोड़ का आईपीओ है। ठीक है, बट लेट्स सपोज जो भी बिडिंग है दैट इज अराउंड 1000 करोड़ के लिए, मतलब 1000 करोड़ का एप्लीकेशन है। अभी गेटिंग इट? ठीक है, सो उसमें क्या होता है, नाउ आईपीओ लिस्ट होने के बाद उसके बाद होता है अलॉटमेंट, आफ्टर सम डेज, मतलब 3 to 5 days आईपीओ एक बार ये क्या बोलते हैं, आईपीओ जब ऑफर किया 3 to 5 days के लिए लोगों ने क्या बोलते बिड किया। ठीक है, आफ्टर दैट मींस दे हैव टू अलॉट द शेयर्स, शेयर्स को अलॉट करना है, मतलब अलॉटमेंट करना है। ठीक है, अगर अलॉटमेंट डिपेंडिंग ऑन सब्सक्राइब कितना हुआ है, अगर अंडर सब्सक्राइब है तो जितने भी लोगों ने पैसा डाला उन सबको शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, हाँ, बट ओवर सब्सक्राइब है, अब इसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज है, थोड़ा डिटेल में इतना नहीं जाऊंगा। अब इसमें लॉटरी सिस्टम रहता है, लॉटरी सिस्टम दैट इज प्योरली लॉटरी सिस्टम, दैट डिपेंड्स ऑन इज एक्चुअली कंप्यूटराइज वन, ऐसा नहीं कि हाँ मैं इसको फेवर करेगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको नहीं देगा, ऐसा नहीं, ये लॉटरी सिस्टम है, जिसको लगी लगी। ठीक है, बिकॉज अभी आईपीओ मेरा ओवर सब्सक्राइब हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को चाहिए वो शेयर्स, बट मैंने सिर्फ 200 करोड़ का ही बेचने को निकाला है। Are you getting it? ठीक है, now here they will apply lottery system and lottery system से allocate होते हैं लोगों को, अब जिसको लगा उसको लगा, उसके ऊपर नहीं। एंड इसमें लॉटरी सिस्टम में एट द मैक्स दे विल अलॉट ओनली वन लॉट के ऊपर देते ही नहीं, जब लॉटरी सिस्टम होता है तो वन लॉट के ऊपर अलॉटमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, सो नाउ अभी आईपीओ के लिए भी मतलब रहता है जस्ट लाइक दिस वन, मतलब आईपीओ कौन कौन लोग डाल सकते हैं पैसा। ठीक है, जब आईपीओ ऑफर करता है ना कौन सा भी कंपनी, ठीक है, सो दैट आईपीओ इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पीपल्स, मतलब 3 लोगों में रहता है, कैसे रहता है, वन इज कॉल्ड द क्यू आई बी, अनदर इज कॉल्ड एज एच एन आई, एंड दिस इज कॉल्ड द आर आई। ठीक है, मतलब आईपीओ है विच इज ऑफ 100%,
मतलब विच इज 200 करोड़ का है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन जस्ट लाइक क्यूआईबी, क्यूआईबी मतलब क्या, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स मतलब व्हाट, अपना वो म्यूचुअल फंड वाले, एलआईसी वगैरह, बिकॉज दो मतलब 2000 सॉरी 200 करोड़ का है ना, ठीक है। सो सम पार्ट ऑफ दैट आईपीओ, मतलब जो भी आईपीओ है उसमें से सम पार्ट विल बी गिवन फॉर द क्यूआईबी, सम पार्ट विल बी गिवन बाय द एचएनआई, सम परसेंटेज विल बी गिवन बाय द आरआरआई, ठीक है। अब क्यूआईबी मतलब क्या, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, बिकॉज मतलब whenever you are just trying to go for IPO ना, ये सब देखना जरूरी होता है, मतलब कौन सा आईपीओ हिट होगा नहीं होगा, वो अपने को पता चल सकता है कि मतलब कितने क्यूआईबी ने डाला है, कितने एचएनआई ने डाला है, देन वी कैन सी हाँ मतलब इसमें आईपीओ में डालेगा तो पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो उसके लिए ये सब देखना पड़ता है, यू कैन जस्ट सी दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, ये डिस्क्लोजर आता है, ठीक है। सो क्यूआईबी इज जस्ट लाइक मींस मैक्सिमम एनी कंपनी कैन अलॉट 50% टू द क्यूआईबी, 50% के ऊपर नहीं दे सकते। क्यूआईबी मतलब क्या, म्यूचुअल फंड वाले वगैरह, एलआईसी वाले और एनी एनी फंडिंग एजेंसी, ठीक है, जिनके पास बहुत सारा पैसा लेके बैठे हो, ठीक है। देन एचएनआई मतलब व्हाट, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर से हाई नेट इन्वेस्टर जो मतलब बहुत सारा पैसा मतलब करोड़ में वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। सो इनके लिए मिनिमम 15% रखना पड़ता है, कीप इन माइंड दिस 50% इज मैक्सिमम, क्यूआईबी के लिए दे कैन नॉट गिव मोर देन 50%, ठीक है। एचएनआई दे हैव टू कीप मिनिमम 15%, एचएनआई मतलब लाइक राधा किशन दमानी, राकेश झुंझुनवाला वैसे वाले लोग, ठीक है, जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। सो दिस इज द एचएनआई गेटिंग, तो उनको सॉरी मिनिमम 50% रखना ही है, एंड रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम 35% रखना ही है, मतलब 35% शेयर अभी अपने को, ये रिटेल मतलब क्या, अपन लोग जो एक दो लॉट खरीदने वाले, ठीक है। तो वी जस्ट कम अंडर दिस कैटेगरी, आर यू गेटिंग इट, आरआरआई रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। सो वी जस्ट फॉलो अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है। हाँ समटाइम्स कंपनी वांट टू हैव दैट, तो रिजर्व में भी रह सकते हैं मतलब फॉर देयर एम्प्लॉय अर्न, बट ये डिफरेंट है, बट नॉर्मली ये तीन कैटेगरी रहते हैं, तो आईपीओ रहता है तो दिस इज डिवाइड इनटू दिस पार्ट, ठीक है। सम पार्ट विल बी गिवन फॉर द क्यूआईबी, ठीक है, मतलब लेट्स सपोज 200 करोड़ का है, अगर इसमें मैंने 50% दिया तो 100 करोड़ क्यूआईबी के लिए रखा है, एंड लाइकवाइज, ठीक है। एचएनआई के लिए 15% एंड रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35%, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग अंडर दिस कैटेगरी, इधर मुझे सब्सक्राइब करना है, इधर 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 मुझे इन्वेस्ट करना है, समझ, ठीक है। और इसके लिए मैं आईपीओ में बिडिंग लगाएगा, गेटिंग इट, ठीक है। अभी या अब जब देन मतलब अब नाउ व्हेनेवर इट ओवर सब्सक्राइब, मतलब ओवर सब्सक्राइब जब होता है तब लॉटरी सिस्टम आते हैं, एंड लॉटरी सिस्टम से फिर लोगों को अलॉट होता है, ठीक है। कीप इन माइंड अभी अलॉट हुआ, शेयर अलॉटमेंट हुआ, शेयर अलॉटमेंट आईपीओ के आफ्टर सम डेज होता है, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट हुआ, आपको मैसेज आ जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर शेयर आपको अलॉट हुआ है, अगर नहीं हुआ तो भी आ जाएगा कि नहीं हुआ है करके, गेटिंग इट, ठीक है। सो कैसे होता है, मतलब नाउ हियर मतलब फॉर आईपीओ एक्चुअली यू हैव टू इन्वेस्ट मनी, मतलब लेट्स सपोज 15,000 का मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, एक्चुअली देना मतलब कि वो लॉक होता है तेरे अकाउंट में से, व्हेन यू आर जस्ट अप्लाइंग फॉर द आईपीओ, वो तेरा अकाउंट में से लॉक होता है, लॉक मतलब क्या, एक्चुअली उसको गया नहीं है, मतलब कंपनी को गया नहीं है, जस्ट लॉक करके रखा है, अगर लॉटरी अगर लगी तो ये पैसा जाएगा, अगर नहीं लेंगे तो फिर से तेरे अकाउंट में वापस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द लॉक, तो अमाउंट लॉक होता है, वो एक्चुअली कंपनी को जाता नहीं है, ठीक है। एंड whenever they say that whenever they declare allotment date and if you have got allotment for that particular lot, तब तेरा पैसा जाएगा, तब तक तेरे अकाउंट से डेबिट नहीं होता है वो, समझो, ठीक है, बैंक अकाउंट से डेबिट नहीं होता, ठीक है। अगर अलॉटमेंट लगा तो वो पैसा जाएगा, अगर नहीं लगा तो पैसा रिटर्न आएगा, ठीक है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट, एंड उसके बाद आता है इशू डेट और लिस्टिंग डेट, समझो, ठीक है। फर्स्ट वाज आईपीओ, ठीक है, सेकंड वाज अलॉटमेंट, एंड अभी थर्ड लिस्टिंग होता है, कंपनी मतलब वो पर्टिकुलर शेयर का लिस्टिंग होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सपोज इनिशियली मैंने मेरा शेयर का प्राइस मैंने 100 रुपीज पे लेट्स 100 to 120 के रेंज में मैंने ऑफर किया था आईपीओ में, ठीक है। नाउ इट इज नॉट कंपल्सरी जब लिस्ट होगा एक्चुअली शेयर, शेयर मार्केट पे, शेयर मार्केट मतलब एनएससी और बीएससी पे, फिलहाल तो अपने लिए एनएससी एंड बीएससी, अपन इंटरनेशनल मार्केट नहीं देख रहे, नैस्डैक वगैरह नहीं देख रहे, फिलहाल तो एनएससी एंड बीएससी, ठीक है। एंड जब वो लिस्टिंग, जब लिस्टिंग डेट होगा, दैट वाज लिस्टिंग डेट होगा, ठीक है। सो लिस्टिंग डेट के टाइम मतलब इट का मतलब दैट प्राइस कैन बी एक्चुअली 100, तो मतलब 100 के ऊपर भी जा सकता है, 100 के नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है लिस्टिंग डेट पे, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन कितना सब्सक्राइब वगैरह हुआ है, कितना एप्लीकेशंस वगैरह आया, ठीक है। अगर मार्केट में तेरा शेयर का मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब वो सब्सक्राइब वगैरह हुआ, तो मोस्टली चांसेस आर देयर कि मतलब जो भी लिस्टिंग डेट पे उसका प्राइस बढ़ेगा, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज 100 पे मतलब मैंने बाय किया था, एंड लिस्टिंग डेट में दैट प्राइस में बी ऑफ 200 आल्सो हो सकता है, डबल भी होता है, बहुत सारे हुए आईपीओ, ठीक है। मैं डिमांड का एग्जांपल हुआ, डोंट वरी, ठीक है। मतलब दैट शेयर का एक शेयर का प्राइस 200 भी हो सकता है, दैट मतलब अभी शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ 200 रुपीज में, ठीक है। मतलब व्हाट, अभी इसके बाद भी किसी को अगर शेयर खरीदना है लिस्टिंग होने के बाद, ठीक है, नाउ ही हैज टू बाय एट 200 रुपीज, आई गेट इट, दैट पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअल हैव टू बाय एट 200 रुपीज,
ठीक है ठीक है। एंड इसके बाद जब से लिस्ट होगा उसके बाद एनी बायर कैन बाय, एनी बायर कैन बाय, एनी बायर कैन बाय वेदर इज 1 शेयर 10 शेयर कौन सा भी। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, आईपीओ एक लॉटरी सिस्टम रहता है, लगा तो लगा नहीं तो नहीं लगा, बट लिस्ट होने के बाद जिसको मांगता है वो बाय कर सकता है। आर यू गेटिंग इट? एट दिस पर्टिकुलर लिस्टिंग प्राइस में। ठीक है, एंड लिस्टिंग प्राइस डिसाइड होता है वो ग्रे मार्केट प्राइस पे वगैरह रहता है, बट उतना डीप में नहीं जाऊंगा, बट दैट डिपेंड्स ऑन पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसे है। इट्स जस्ट सिंपल, अगर बायर्स ज्यादा है तो पैसा मतलब ये प्राइस तो बढ़ेगा ही। Are you getting it? ठीक है, एंड दैट वाज व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ डीमार्ट। ठीक है, डीमार्ट का इश्यू प्राइस था 299 रुपीज, एंड जब वो लिस्ट हुआ ना लिस्टिंग डे पे उसका प्राइस 600 हो गया, डबल, मतलब एक ही दिन में पैसा डबल हो गया। गेटिंग इट? ठीक है, जब वो लिस्ट हुआ था, आई डोंट नो दैट एग्जैक्ट डेट, आई थिंक 12 मार्च को वगैरह कुछ लिस्ट हुआ था। ठीक है, तो लिस्टिंग डेट पे उसका प्राइस 600 रुपीज हो गया। गेटिंग इट? ठीक है, अब मेरा कंपनी लिस्ट हो गया, अब ये लिस्ट हो गया मतलब व्हाट, ठीक है, नाउ इट इज ऑन एनएससी एंड बीएससी। ठीक है, अब इसके बाद जो भी मतलब ये पर्टिकुलर शेयर में ट्रांजेक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड, दैट विल बी इन अ सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, whenever I'm just doing that IPO, that is called the primary market. Primary market means what? I am buying a shares from company itself, मतलब वो प्रमोटर के पास ही मैं मतलब खरीद रहा हूँ। Try to understand. ठीक है, and whenever that company get listed, जब वो listed हो जाती है, ठीक है, after that the shares get buy and sold in secondary market. Secondary market मतलब क्या? Now I'm gonna take it from the company. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी इनिशियली मतलब मैंने पब्लिक को उसने ऑफर किया था, सबके पास मतलब आ गए शेयर्स। ठीक है, नाउ समवन वांट टू सेल, समवन लेट्स सपोज मी, कि मतलब मुझे आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ था, अभी गेट इट, आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ था। ठीक है, मुझे लेट्स सपोज 150 शेयर्स लगे, 150 बिकॉज़ लॉट 150 शेयर का ही था। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज इफ आई वांट टू सेल, इफ आई वांट टू सेल द डीमार्ट का शेयर्स, मतलब जो भी एबीसी कंपनी का जो भी शेयर है लेट्स सपोज, ठीक है, मुझे भी सेल करना है। ठीक है, नाउ आई कैन सेल। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ दिस इज व्हाट, मतलब आई एम नॉट द एंटायर कंपनी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी जो मतलब आईपीओ लिस्टिंग के बाद जो भी मतलब ट्रांजेक्शन होता है दैट कम्स इन सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, अभी इधर कंपनी बीच में नहीं आएगी, अभी इधर कंपनी बीच में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, समवन वांट टू बाय दिस पर्टिकुलर शेयर एट लेट्स सपोज 250 रुपीज, देन उसको मैं सेल कर देगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सो नाउ आफ्टर दैट मींस आफ्टर दैट आईपीओ इन अ सेकेंडरी मार्केट वी आर, मतलब दैट पब्लिक दैट शेयर्स आर गेटिंग एक्सचेंज इन पब्लिक इटसेल्फ, मतलब एक से दूसरे को, दूसरे से इसका आता है, बस वही उसे एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है, नाउ हियर इट वोंट बी फ्रॉम कंपनी। ठीक है, व्हेनेवर इट गेट लिस्टेड उसके बाद पब्लिक के बीच में शेयर एक्सचेंज होता है, मतलब मुझे सेल करना है, किसी को बाय करना है, खत्म, ट्रेड हो गया, उसको दे दिया मैंने। ठीक है, so now that will be in public, getting it? ठीक है, so this is what we have seen regarding the IPO. once again just revise that to understand, ये फंडा इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपनी लिस्ट कैसी होती है शेयर मार्केट में। ठीक है, so what we have seen, try to understand once again, I will just revise it. इनिशियली मुझे कंपनी स्टार्ट करनी थी, ठीक है, मैंने जस्ट रिलेटिव्स वगैरह जो भी क्लोज थे उन्होंने से पैसा ले लिया। ठीक है, उनको अगर मुझे कुछ रिटर्न देना है, ठीक है, पहला उसके पहला इफ यू जस्ट रेज अ फंड देयर आर टू वेज, एक तो डेट फाइनेंसिंग, अदरवाइज इक्विटी फाइनेंसिंग। ठीक है, आई डोंट वांट टू गो फॉर अ डेट बिकॉज उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह बहुत लगता है, एंड मुझे वो कंपलसरी देना ही है, कंपनी तेरे चली ही नहीं तो फिर नहीं चली, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो वो कंपनी को मतलब बैंक को पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इक्विटी में कैसा मींस आई एम गिविंग शेयर्स टू दैट पर्टिकुलर पीपल, अगर कंपनी चली तो उनका फायदा, कंपनी डूबी तो भी उनका ही लॉस, मतलब मुझे कुछ नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई नीड नॉट टू पे समथिंग टू देम। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई गो फॉर इक्विटी फाइनेंसिंग, नॉर्मली कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए जाती है। ठीक है, सो इनिशियली क्या किया, आई हैव टेकन मनी फ्रॉम द फ्रेंड्स। सो स्टार्टिंग में वी हैव टू डिसाइड अ फेस वैल्यू, बिकॉज मुझे नंबर ऑफ शेयर्स देने। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब एक शेयर कितने पे देना है इनिशियली, तो उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, सो इफ someone is investing 1 lakh, face value is a 10 rupees, then initial shares allotment to that is a 10,000 number of shares। ठीक है, एंड फॉर देम आई विल बी जस्ट गिव अ शेयर सर्टिफिकेट। हाँ, बट कंपनी तरह जब लिस्टिंग होता है तब तुझे डीमैट में देना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स देने पड़ते हैं। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो इनिशियली यस वी कैन हैव अ शेयर सर्टिफिकेट, मतलब इनिशियली इज नॉट की कंपल्सरी कि मतलब वो डीमैट में होना चाहिए, नो पॉसिबल नहीं, बिकॉज कंपनी अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ है, वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कंपनी। ठीक है, देन उसके बाद या ये इनिशियली मैंने कंपनी स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे फिर उसको ग्रो कर रहा है, देन आई विल जस्ट स्टार्ट अप्रोचिंग एचएन एंड ऑल, बिकॉज डायरेक्टली तो लिस्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि मतलब हाँ इनिशियली मुझे लगा कंपनी में मेरे दम में लिस्ट होगा ना। ये जो सेबी के वगैरह रूल्स रहते हैं, सेबी क्या होता है बाद में आएगा पिक्चर में, डोंट वरी, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, एनएससी एंड बीएससी में रूल्स है, मतलब कंपनी का इतना इतना परफॉर्मेंस है क्या, दे आर हैविंग सम रूल्स, इतना इतना तेरा वर्थ मतलब नेटवर्थ है क्या, इतना इतना कैश फ्लो है क्या, इतना इतना ग्रोथ है क्या, इतना इतना सेल्स है क्या, मतलब दिस इज व्हाट वी हैव टू फुलफिल, अगर ये फुलफिल हुआ तो ही तो आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ऐसे नहीं कि कोई भी आएगा और आईपीओ के लिए अप्लाई करेगा, नो। अगर मतलब मेरा कंपनी को मुझे रिस्क करना है, नो ऐसे नहीं, दे आर हैविंग सम गाइडलाइंस दैट आई विल नॉट डिस्कस नाउ। ठीक है, सो अगर वो फुलफिल हुआ तो तब तक कंपनी को ग्रो करना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड स्टेज क्या रहेगा, मैं एचएनआई से पैसा उठाऊंगा इन्वेस्टर से।
ठीक है, एंड उनको भी मैं शेयर्स ही दूंगा वंस अगेन। हाँ, बट उस टाइम भी शेयर्स कितने पे देना तेरी मर्जी। तो इफ यू वांट यू मे जस्ट इंक्रीज दिस प्राइस आल्सो, बिकॉज तूने कुछ तो मेहनत किया ना अभी तक, बेस प्राइस पे क्यों दूं? ठीक है, सो दैट डिपेंड्स ऑन यू, मतलब कैसे करना है तेरे को, दैट दैट एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स मतलब जिन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए। गाइस आई एम ऑडिबल ना, एवरीवन इज दिस थिंग ना? यस Yes. सर। या ओके ओके फाइन फाइन फाइन, या ठीक है। सो नाउ दिस प्राइस यू कैन डिसाइड, मतलब उसको 20 पे देना 30 पे देना, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अदरवाइज यू मे जस्ट गिव इट ऑन 10 आल्सो। हाँ, बट 10 के नीचे नहीं है अभी, 10 के नीचे नहीं देगा मैं। तो फिर मतलब यार एड़ा बनेगा ना, तो जो प्रोमोटर बोलेंगे हमने क्या किया फिर। ठीक है, तो 10 के नीचे नहीं होगा, मतलब एट 10, अदरवाइज 10 के ऊपर, उसके ऊपर देगा, उसके नीचे नहीं जाएगा अभी। ठीक है, सो वंस अगेन आई विल जस्ट गिव अलॉटमेंट टू देम आल्सो। एंड उसके बाद भी अगर कंपनी बढ़ रहा है, मतलब इधर प्राइवेट लिमिटेड था, ये भी लिमिटेड होगा, अभी उसके बाद भी कंपनी बढ़ रहा है, एंड इफ आई एम जस्ट satisfying this all the norms of that NSE और BSE, जो भी सेबी वगैरह जो भी नॉर्म्स है आईपीओ के लिए, अगर इफ आई एम नॉट satisfying that, अब मैं गो विल फॉर आईपीओ। अभी मैं पब्लिक लिमिटेड, मतलब पब्लिक करेगा वो कंपनी को, बिकॉज अभी पब्लिक से पैसा आएगा। वाई? बिकॉज इतना ज्यादा पैसा अगर चाहिए तो शेयर मार्केट में लिस्ट ही होना चाहिए, बिकॉज उधर पूरी दुनिया है, वो सब पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, and जब तक तू लिस्ट नहीं होता, लोगों को पता कैसे चलेगा कि मतलब ये कंपनी इसमें पैसा डालना है। ठीक है, सो व्हेनेवर आई वांट दैट मोर एंड मोर मनी, आई वांट टू रेज मोर एंड मोर फंड, देन आई विल जस्ट गो विद दिस वन। ठीक है, अब कंपनी आईपीओ के लिए क्यों जाते हैं? देयर आर मेनी रीजंस। इफ दे वांट टू रेज अ मनी फॉर द एक्सपेंशन, अदरवाइज दे वांट टू पे देयर डेट, जो भी कर्जा है उसको सब नील करना है, उसके लिए देयर आर डिफरेंट रीजंस दैट आई विल नॉट गो इन डिटेल। ठीक है, हाँ, बट दिस इज लास्ट स्टेप इज व्हाट, उसको लिस्टिंग करना कंपनी को। अब लिस्ट कैसे होता है, उसमें डिफरेंट स्टेप है, पहला आईपीओ लाना पड़ता है। आई जस्ट रिवाइज द थिंग्स व्हिच वी हैव सीन टुडे। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। पहला आईपीओ लाना पड़ता है। आईपीओ मतलब व्हाट, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहली बार पब्लिक ऑफर करेगा। ठीक है, एंड दैट विल बी ऑफर्ड बाय कंपनी, एंड दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट। समझो, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट, व्हेन अदर कंपनी इज गिविंग द शेयर्स टू यू। ठीक है, मतलब नाउ इन आईपीओ इफ दिस इज द इंडिविजुअल, ही इज बाइंग फ्रॉम कंपनी। ठीक है, एंड सेकेंडरी मार्केट में इट जस्ट गेट एक्सचेंज इन बिटवीन इंडिविजुअल्स ओनली। समझो, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस इन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, और एक बार कंपनी लिस्ट होने के बाद वो इंडिविजुअल्स के बीच में ही एक्सचेंज होता है, सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंज होता है शेयर्स। फाइन, ठीक है। अभी आईपीओ में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड कि मतलब मेरा कंपनी का वर्थ कितना, मतलब मेरे कंपनी का वैल्यू कितना है, वैल्यूएशन, दैट इज व्हाट वी हैव टू डिसाइड, दैट विल बी डिसाइडेड बाय सम बैंक्स एंड ऑल, उनके साथ बैठ के वैल्यूएशन डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, आउट ऑफ दैट अभी जो भी वैल्यूएशन है उसमें से कितना मैं ऑफर करना चाहता हूँ, मतलब कितना मैं, कितने का मैं आईपीओ लाना चाहता हूँ, कितना मैं सेल करना हूँ मुझे। ठीक है, सो कीप इन माइंड, इसमें रूल है कि मतलब 80% से ज्यादा कोई भी सेल नहीं कर सकता। 80% से ज्यादा कोई भी सेल नहीं कर सकता, एंड इतना कोई स्टार्टिंग में करता ही नहीं। नॉर्मली 20 30 50 अप टू 50% के ऊपर कोई आईपीओ लाता ही नहीं। ठीक है, नॉर्मली नहीं करता, बिकॉज प्रमोटर का अगर होल्डिंग कंपनी में नहीं है, मतलब व्हाट, लोग क्या बोलेंगे, तेरे को खुद के कंपनी में भरोसा नहीं है, तुझे ये सब बेचना है, तो मैं क्यों पैसा डालूं। समझो, ये सब बताऊंगा मैं बाद में, प्रमोटर होल्डिंग चीज क्या होती है। ठीक है, तो दिस इज द रूल, 80% के ऊपर वो सेल नहीं कर सकते। ठीक है, सो लेट्स सपोज मेरा 1000 करोड़ का है, मैंने 20% ही दे दिया, मतलब मुझे 20% का ही आईपीओ लाना है, सो 200 करोड़ का। इतने इतने, दिस इज कॉल्ड द इशू साइज और आईपीओ साइज, दिस इज इंपॉर्टेंट होना। व्हेनेवर यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी आईपीओ ना, तो उसका इशू साइज भी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, मैं कभी तो बाद में बताऊंगा। ठीक है, इशू साइज भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी इशू साइज जैसे मेरा 200 करोड़ का है। ठीक है, उसके बाद अब मुझे करना क्या है, नाउ वी हैव टू डिसाइड कि इशू प्राइस क्या रहेगा। इशू साइज मैंने डिसाइड किया कि मतलब इतना मुझे बेचना है, अब इशू प्राइस क्या रहेगा। अब इशू प्राइस में दो टाइप रहते हैं, फिक्स प्राइस एंड बुक बिल्डिंग इशू। फिक्स प्राइस इशू एंड बुक बिल्डिंग इशू। फिक्स प्राइस मतलब ये पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड करना है, खत्म। एंड बुक बिल्डिंग में क्या रहता है कि उसमें रेंज देते हैं। अब ये रेंज क्यों रहता है, मतलब ये टेस्टिंग के लिए होता है, मतलब मार्केट में टेस्टिंग करने के लिए, टेस्ट करने के लिए शेयर को। मतलब लोग 100 पे ही दे रहे हैं कि 120 पे ले रहे हैं, अगर 120 पे ले रहे हैं मतलब what, लोगों को बाय करने की, मतलब क्या बोलते हैं, दे आर ईगर टू बाय हायर प्राइस, मतलब कंपनी गुड परफॉर्म कर सकती है आप। ठीक है, सो नॉर्मली कंपनी गो फॉर दिस वन, बुक बिल्डिंग प्राइस, ये भी होता है फिक्स प्राइस इशू, बट नॉर्मली अभी फिलहाल तो कंपनी प्रीफर नहीं करती, यही कंपनी मतलब प्रीफर करते हैं, बुक बिल्डिंग इशू। ठीक है, सो इन दिस केस वी हैव टू डिसाइड द इशू प्राइस, मतलब प्राइस क्या रहेगा, सो प्राइस बैंड रहेगा। ठीक है, एंड प्राइस बैंड मतलब उसको लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट रहेगा। जो लोअर रहता है उसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस, जो अपर उसको बोलते हैं कैप प्राइस। एंड द डिफरेंस बिटवीन देम कैन नॉट बी मोर देन 20%, मतलब ऐसा नहीं कि लोअर प्राइस 100 का और दूसरा 1000, ऐसा नहीं होता है। ये 20% के ऊपर डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, उसके नीचे जितना भी रखना रख, बट 20% के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, सो नाउ दिस इज कॉल्ड द आईपीओ। अभी आईपीओ नाउ इशू प्राइस डिसाइड किया, उसके बाद लॉट साइज डिसाइड करना पड़ता है। दे विल डिसाइड लॉट साइज, एंड नॉर्मली लॉट साइज ऐसा रहता है कि मतलब जो भी एक इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 15,000 के आसपास रहेगा, मतलब दैट इज गोइंग टू बी द लॉट साइज। हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर मेरा शेयर का प्राइस 100 है, ठीक है, सो नॉर्मली एक लॉट का प्राइस, नॉर्मली कंपनी लोग 15,000 के ऊपर नहीं रखते, नॉर्मली दे कैन हैव एनीथिंग, मतलब 1 लाख का भी रख सकते हैं, बट नॉर्मली समझो कि मतलब 15,000 के ऊपर नहीं रख सकते, नहीं रखते हो।
ठीक है, तो मतलब मेरा एक लॉट 150 होगा, 150 नंबर ऑफ शेयर्स एंड दिस इज द प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, तो देन दे हैव टू डिसाइड लॉट का साइज। ठीक है, ठीक है, सो लॉट का साइज डिसाइड के लिए सपोज 150, किधर गए, या लॉट का साइज डिसाइड 150। ठीक है, सो अभी एक लॉट का प्राइस हो गया 15,000, बिकॉज लॉट का साइज 150 मतलब दिस द नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब इतने आपको बाय करना ही करना है, एंड एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज, मतलब एक लॉट का प्राइस होगा 15,000 रुपीज, एंड नाउ द पब्लिक हैव टू बाय इन अ लॉट, मतलब एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, ऐसा। गेटिंग इट? just minus 2% up, very good, yeah, 15%, दिस इज द, मतलब दे हैव टू बाय इन अ लॉट। ठीक है, अभी बाय करेंगे, अभी लोग बिडिंग करना चालू करेंगे। ठीक है, बिडिंग के बाद नाउ दे हैव टू सी, मतलब आईपीओ, अभी आईपीओ में वंस अगेन आई टोल्ड, मतलब देयर आर थ्री पीपल, दे हैव टू जस्ट अलॉट दैट आईपीओ टू द थ्री पीपल। क्यूआईबी को देना पड़ता है, एचएनआई एंड आरआरआई को, इनका कुछ ना कुछ तो मतलब उनको परसेंटेज रखना है। ऐसा ही नहीं कि पूरा का पूरा आईपीओ आरआरआई को देंगे, ऐसा नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर को। ठीक है, दिस इज व्हाट मतलब द रूल्स आईपीओ लाते वक्त, मतलब सम पार्ट विल बी ऑफ क्यूआईबी, सम पार्ट विल बी ऑफ एचएनआई, सम पार्ट विल बी ऑफ आरआरआई। ठीक है, तो मैक्सिमम 50% क्यूआईबी को, क्यूआईबी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, मतलब वो म्यूचुअल फंड वगैरह। एचएनआई मतलब हाई नेट इन्वेस्टर, लाइक जो भी बड़े बड़े बिग शॉट्स है वो। ठीक है, एंड आरआरआई मतलब अपन लोग। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, जिनको मिनिमम 35% देने ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये दिस इज व्हाट दे हैव टू फिलफिल, मतलब इतने परसेंटेज में आपको करना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अभी आईपीओ बिडिंग अब जो करेंगे, हम जो करेंगे ये लॉट में करते हैं, आरआरआई में, रिटेल इन्वेस्टर, इधर नहीं कर सकते, इधर करते हैं, इधर करते हैं। ठीक है, उसके बाद देन आईपीओ होने के बाद, मतलब आईपीओ मतलब इट विल बी ओपन फॉर सम डेज, मतलब 3 to 5 days के लिए ओपन रहते हैं, लोगों को पैसा मतलब बिडिंग करना पड़ता है, मतलब या आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, तो जब आप आईपीओ के लिए मतलब अप्लाई करते हो, तो आपका अमाउंट जो भी रहेगा वो लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है, क्योंकि मैंने कंपनी को अभी तक गया नहीं है, गया जाता कभी जब आपको अलॉटमेंट होगा तब। ठीक है, लॉक हो गया, नाउ दे विल डिसाइड, नाउ नाउ दे जस्ट सी फॉर द सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, ओवर सब्सक्राइब हुआ है, अंडर सब्सक्राइब हुआ है, लाइक वाइज, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट मोस्टली दैट एक्चुअली ड्राइव्स दैट लिस्टिंग प्राइस। ठीक है, अभी आईपीओ हुआ, उसके बाद वो अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट के मैंने स्ट्रेटेजीज बताया, अगर अंडर सब्सक्राइब है तो जितने भी जिन्होंने भी अप्लाई किया सबको मिलेगा, ओवर सब्सक्राइब रहेगा तो फिर लॉटरी, अब उसमें भी बहुत सारे डिटेल्स है, बट फिलहाल तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, ओवर सब्सक्राइब है तो लॉटरी में जाएगा वो, जिसको लगना है लगेगा, नहीं लगना है नहीं लगेगा। ठीक है, अब अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट, अब जब अलॉटमेंट आता है तब तेरे अकाउंट में से पैसा जाता है, एंड यू विल गेट एक्चुअली दैट शेयर्स। ठीक है, एंड उसके बाद आता है लिस्टिंग डेट, लिस्टिंग डेट, लिस्टिंग डेट। ठीक है, एंड लिस्टिंग डेट पे मोस्ट ऑफ ऐसे ही देखे, अगर तेरा मतलब या इट्स नॉट की मतलब जो भी तेरा इश्यू प्राइस है वही पे उस पे ही लिस्ट होना चाहिए, होता है उसके ऊपर लिस्ट होना, ऐसा कुछ नहीं, दैट कैन बी एनीथिंग, उससे नीचे भी जा सकता है, ऐसा भी हुआ है आईपीओ में, इट कैन गो बिलो दैट आल्सो। लाइट गिरी की है, सॉरी जस्ट अ मिनट, नो इट इज या, ठीक है, इट कैन गो मींस जो भी इशू प्राइस है, सपोज मेरा कितना था 100 रुपीज, इसके नीचे भी जाता है, इसके ऊपर भी जाता है, दैट डिपेंड्स ऑन पब्लिक का रिस्पांस कैसा है। ठीक है, ठीक है, नाउ एज आई टोल्ड, डीमार्ट का जो भी 299 इशू प्राइस था, जब लिस्ट हुआ उसका प्राइस 600 हो गया था, समझ में आना। ठीक है, एंड जब वो एनएससी पे लिस्ट होगा, मतलब एनएससी पे जब उसके चार्ट्स में दिखने लगेगा वो पर्टिकुलर कंपनी, आप बोल सकते हैं लिस्टेड है, एंड उसके बाद जो भी एक्सचेंज होगा शेयर्स का, दैट विल बी इन सेकेंडरी मार्केट, मींस इट वुड बी टू द कंपनी एंड इंडिविजुअल, इट विल बी इन बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज ऑल वी हैव सीन रिगार्डिंग आईपीओ। एनी डाउट अभी? नाउ द लास्ट 10 minutes I will just keep it to you. Any doubt? अब किसी को भी डाउट है तो पूछो। That's all I have explained regarding the IPO. सर जितना चाहिए उतना मैंने बता दिया। बोल। फेस वैल्यू 10 के ऊपर नहीं रहेगा? हाँ, अभी एक सेबी ने गाइडलाइन डाला है कि 1 to 5 and 10 इसमें से ही फेस वैल्यू हो सकते हैं, 1 to 5 and 10। गेटिंग? ओके सर। ठीक सर है, और वो 1 जो to 5 10, हाँ बोल। लॉटरी होता है आईपीओ के हाँ लिए, हाँ, तो वो मतलब लॉटरी में भी